वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा में इसराइल फ़लस्तीनियों का मुनज़्ज़म तरीके से कत्लेआम कर रहा है। गजा में बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं। दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। फ़लस्तीनियों के घर मलबे के ढेर बनते देखकर दुनिया कैसे खामोश है? गजा के बच्चों का खून सिर्फ काबिज़ फौज के हाथों पर नहीं, उन पर भी है जो इस पर खामोश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इसराइली खूनरेज़ी फौरी बंद की जाए। सिर्फ मजम्मतें काफ़ी नहीं, अमल ज़रूरी है। पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिबा किया कि फ़लस्तीन को लाज़मी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की फौरी मुकम्मल रुकनियत दी जाए। Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land, a tragedy that shakes the very conscience of humanity and the foundation of this institution. This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. Mr. President, in a span of a few days, Israel's unrelenting bombing of Lebanon has killed over 500 people, including women and even small children. The failure to implement UN resolutions has emboldened Israel. It threatened to drag the entire Middle East into a war whose consequences could be very grave and beyond imagination. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि फ़लस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम भी 1 सदी से जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत की तमाम हदें पार कर चुका है। भारत के जारहाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को खतरात हैं। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत का वादा किया गया था। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करके मज़मूम कोशिश की जा रही है। In a classic settler colonial project, India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. Let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Therefore, to secure durable peace, India must reverse the unilateral and illegal measures it has taken since 5th of August 2019 and enter into a dialogue for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN security resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Mr. President, remember, illegal occupation creates a fresh hell every day in the killing fields of Palestine and in the pristine valleys of occupied Jammu and Kashmir. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ़गान अबूरी हुकूमत से तवक्को है कि वो सरहद पार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये भी कहा कि कल अदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अल-कायदा और फितना अल-खवारिज अमन के लिए खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के जरिए अमन व सलामती यकीनी बनाएंगे। फितना अल-खवारिज के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। Pakistan seeks the earliest possible normalization of the situation in Afghanistan. We join the UN's appeal for $3 billion in humanitarian assistance to the millions of suffering Afghan brothers and sisters. The interim government must take effective action to neutralize all terrorist groups within Afghanistan, especially those responsible for cross-border terrorism against neighboring countries. These include ISIL-K, Daesh, the Al-Qaeda
associated TTP, Fitna al-Khawarij, Majid Brigade, the BLA and other terrorist groups which unfortunately are seen on Afghan territory. अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब का पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों ने बॉयकॉट किया। नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही पाकिस्तानी वफ़द और दीगर ममालिक के सिफारतकार एहतजाजन उठकर बाहर चले गए। आपको बताएंगे इसराइली फ़ौज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत की जनूबी टाउन पर बमबारी की है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने एयरपोर्ट रोड पर मखसूस इमारत को निशाना बनाया। इसराइली तैयारों ने अलब्रज इमारत पर 10 मिसाइल दागे। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के सेंट्रल कमांड को बमबारी का निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का सेंट्रल कमांड इमारत के नीचे कायम किया गया था। अरब मीडिया का दावा है कि गुज़श्ता 5 रोज़ में इसराइली फ़ौज की बैरूत पर सबसे ताकतवर बमबारी है। बमबारी का असल हदफ हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह थे। इसराइली फोर्सेस ने ताकतवर मिसाइलों से फ़ज़ाई हमले किए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची कोर के तहत आने वाले इलाके का दौरा किया, जहां उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों और फौज की जानिब से अहम तरबियती इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का भी इफ्तिताह किया। कारोबारी बरादरी से गुफ्तगू में मुल्क की माशी तरक्की में ताजरों और सरमायाकारों की खिदमात को सराहा। गुफ्तगू में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिश करने वालों को शिकस्त हुई है। तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशों से मायूसी पैदा करने वालों को शिकस्त हुई है। चीन, सऊदी अरब और UAE की जानिब से मुताद्दिद शोबों में मदद फराहम की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र सलाहियत रखता है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना सही मकाम हासिल करेगा। पाकिस्तान का मुक़द्दर है कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना सही मकाम हासिल करे। ISPR के मुताबिक IT पार्क की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिविल कम्यूनिटी के अफराद ने शिरकत की। आर्मी चीफ का कहना था कि ऐसे मनसूबों का मकसद IT इंडस्ट्री की तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। तकरीब में वज़ीर आला सिंध ने नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने और मुआशी तरक्की के लिए IT डोमेन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अदलिया और पार्लियामेंट में डेडलॉक खत्म न हुआ तो इसका नतीजा आईनी मेल्टडाउन हो सकता है। अगर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं। ख्वाजा आसिफ ने PTI के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि PTI के जब भी मुज़ाकरात होंगे सियासी बिरादरी के साथ होंगे। वैसे मुज़ाकरात का इम्कान नज़र नहीं आता। देखिए ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्क में महंगाई में मज़ीद कमी की पेशगोई कर दी है। सितंबर और अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। सितंबर की अपडेट इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। रवा माली साल के पहले 2 माह में मुस्बत माशी आसार नजर आ रहे हैं। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल का मुकदमा सिंदरी थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा डॉक्टर शाहनवाज के बिरादर निस्बती की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी की शिकें शामिल की गई हैं। मुकदमे में SHO एहलकारों समेत 15 अफराद शामिल हैं। साबिक DIG जावेद जस्कानी भी मुकदमे में नामजद हैं। साबिक SSP मीरपुर खास असद चौधरी और साबिक SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच को भी नामजद किया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा है कि मीरपुर खास वाक़े पर FIR दर्ज कर ली गई है। ज़िया लंजार का कहना है कि अदल इंसाफ पर यकीन रखते हैं। कोई कितना बाअसर या आला अफसर क्यों ना हो, आइन और कानून का एहतराम लाजिम है। कानून की रिट और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पुरअज़्म है।